Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session, we are going to see the important MCQs on lubricants. ये lubricants टॉपिक बहुत ही important टॉपिक है. इसमें हम जो lubricants के टाइप्स है या फिर उनकी प्रॉपर्टीज है उस पे कुछ MCQs देखेंगे. So first question, dash is best suited for lubrication in a regular atmosphere. Options दिए हैं ग्राफाइट, ऑयल, टैल्क पाउडर, ग्रीस. तो करेक्ट ऑप्शन है ग्राफाइट because this graphite is a black colored powder and sometimes it is used along with the grease. So graphite is a best suited lubricant. Question number 2, dash is not effective in vacuum. Options दिए हैं A graphite, B oil, C talc powder, D grease. तो करेक्ट ऑप्शन है ग्राफाइट A because it could not be used in vacuum. Question number 3, which of the following is or are benefits of graphite solids? Options दिए हैं A good lubrication in high humidity, B protection against fritting corrosion, C low coefficient of friction under high loads, D all of the above. तो करेक्ट आंसर है all of the above because all these are the benefits of the graphite and this graphite is widely used as a lubricant. Next question देखते हैं. Dash generally consists of a soap emulsified with mineral or vegetable oil. Options दिए हैं A graphite, B blended oils, C grease, D jelly. तो correct answer है grease because grease is a semi-solid which is available in many types and that depends on the chemicals present in it like calcium based या फिर सोडियम बेस्ड greases. ये उसके कुछ एग्जांपल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश also acts as sealants. तो ऑप्शंस दिए हैं ग्राफाइट, ब्लेंडेड ऑयल्स, ग्रीस एंड जेली. तो करेक्ट आंसर है ग्रीस because grease is a semi solid lubricant which can be used in sealing the gas valves. Next question, dash is or are most commonly used as lubricants. तो ऑप्शंस दिए हैं वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल्स, बी ग्राफाइट, सी जेली, डी ब्लेंडेड ऑयल्स. तो करेक्ट आंसर है वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल because these are the oils which are easily synthesized and easily available. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल मींस. ऑप्शंस दिए हैं मिक्सिंग और डोपिंग टू लुब्रिकेंट्स टुगेदर, मिक्सिंग और डोपिंग टू और मोर लुब्रिकेंट्स टुगेदर, सेपरेटिंग टू लुब्रिकेंट्स एंड डी नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन है मिक्सिंग और डोपिंग टू और मोर लुब्रिकेंट्स टुगेदर. ब्लेंडिंग का मतलब होता है ब्लेंड करना, मतलब मिक्स करना या फिर ऐड करना. तो आप दो या फिर उससे ज्यादा भी लुब्रिकेंट्स एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं. तो दिस ब्लेंडिंग इज नथिंग बट दी मिक्सिंग और जनरली इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स आर. ऑप्शंस दिए हैं ए विस्कोसिटी, बी फ्लैश पॉइंट, सी फायर पॉइंट, डी ऑल ऑफ द मेंशन. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन because all these are the properties of lubricants. Question number 9, viscosity index is. तो आंसर दिए हैं A relation between viscosity and acid value, B relation between pressure and temperature, C relation between viscosity and pressure, D relation between temperature and viscosity. तो करेक्ट आंसर है D relation between temperature and viscosity. जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते हैं विस्कोसिटी भी चेंज होती है. इस फेनोमेनन को हम कहते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स. और अगर विस्कोसिटी इंडेक्स अगर टेम्परेचर के बारे में अगर देखना है तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है विस्कोसिटी डिक्रीज होती है. और ये जो विस्कोसिटी इंडेक्स है इसे हम कैलकुलेट करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए एक एपैरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है रेडवुड विस्कोमीटर. So this is the apparatus. Next question, dash is the ability of the oil to resist
internal deformation due to mechanical stress. Options है A viscosity, B flash point, C fire point, D cloud point. तो करेक्ट आंसर है viscosity. तो ये जो viscosity होती है it is also called as rate of flow of liquid. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Pour point is the lowest temperature at which the lubricating oil will flash when a small flame is passed across the surface. तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि पोर पॉइंट ये जो होता है ये हम पोर करते हैं, लिक्विड को पोर करते हैं. मतलब यहाँ पे जो आगे वाला सेंटेंस दिया है एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल विल फ्लैश, ये जो फ्लैश है इसका मतलब ये फ्लैश पॉइंट हो गया. ठीक है, तो पोर पॉइंट की डेफिनेशन अलग है. पोर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि लिक्विड या फिर कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल है वो सीज होता है फ्लो करने के लिए, सीजेस टू फ्लो और इट बिकम्स फ्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज अ पोर पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फायर पॉइंट ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी sufficiently high so as to avoid flashing of oil vapors at that temperatures. The sentence is true or false? The sentence is false because the fire point क्या होता है? It is the minimum temperature at which lubricating oil जिसके वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फायर कैच करते हैं और they can burn continuously. That is a fire point. Next, dash is the lowest temperature at which the oil burns continuously. Options दिए हैं A viscosity, B flash point, C fire point, D none of the mentioned. तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है C fire point, क्योंकि फायर पॉइंट क्या होता है? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल कैचेस दी और या फिर ऑयल के जो वेपर्स है वो फायर कैच करते हैं और बर्न होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेटिंग ऑयल विल सीजेस टू फ्लो. तो सीज होता है फ्लो करने के लिए. इसके ऑप्शंस दिए हैं पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट. तो ये होता है पोर पॉइंट. सीजेस टू फ्लो मतलब किसी अलग वेसल में अगर हम उसे पोर करते हैं तो तब वो सीज होता है या फिर फ्रीज होता है. फ्रीजेस टू फ्लो या फिर सीजेस टू फ्लो, दैट इज ए पोर पॉइंट. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन. डैश इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल विल बिकम क्लाउडी. क्लाउडी अपीयरेंस या फिर हैजी अपीयरेंस होता है. तो ये भी एक डेफिनेशन है. तो ऑप्शंस दिए हैं पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट. द करेक्ट आंसर इज इट इज ए क्लाउड पॉइंट. क्लाउडी होता है मतलब इट बिकम्स हैजी, है ना, अपीयरेंस उसका हैजी होता है क्लाउडी, इसलिए वो हो गया क्लाउड पॉइंट. सो विद दिस वी स्टॉप हियर. फॉर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज एंड इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स and please press the bell icon button. Thank you.